So good evening, everyone. My name is Mayank Chachan, and now we'll be continuing with the part two of change in profit sharing ratio among the existing partners. So in the last class, we completed till the valuation of goodwill through different methods. So एक बार हम recall कर लेते हैं all those methods. So there were three methods: average profit method, super profit method, and capitalization of average profit as well as super profits. तो वो सारे methods and practical questions हमने कर लिए थे पिछले क्लास में. So now let's move on. So the next topic which comes is accounting treatment of goodwill whenever there is a change in PSR. So अभी तक हम ये देख रहे थे कि how to find out the value of goodwill. अब हमें करना है कि what is the treatment of goodwill whenever there is a change in PSR, कि उस goodwill के amount को कैसे treat करना है. हाँ. So when there is any change in the profit sharing ratio of the partners, goodwill is valued and one partner may gain a share of profit and other may sacrifice. We calculated the sacrificing in gaining ratio in the beginning of the question. So we adjust goodwill through the capital accounts of the partners. Debit the gaining partner's capital account and credit the sacrificing partner's capital account. क्योंकि ये किस लिए होता है? We must compensate the sacrificing partner for his loss in the share, whereas the gaining partner must compensate the sacrificing partner for his loss of share. For example, हम देखते हैं कि there were two partners and they were sharing profits in the ratio of 1:1. Afterwards, they started sharing in profits in certain ratio, and the sacrifice by a partner was 1/2, whereas the gain by other partner was 1/2. So अगर हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 20,000 रुपए है, तो उसके हिसाब से हमारा कितना बैठेगा? Let's check. See, so if the valuation of goodwill is 20,000 rupees and one partner has sacrificed 1/2, so he must compensate 10,000 rupees to the other partners. So entry क्या जाएगी आपकी? So the journal entry would be gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. ठीक है, let's move on. So see this question. Ram, Sham and Bharat are partners sharing profits in 6:5:2. And on 1st April 2017, they agreed to become equal partners and the value of the goodwill of the firm was 78,000 rupees. Pass the necessary adjustment entry. तो अब देख, गुडविल की वैल्यूएशन हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें निकालनी नहीं है. सो हमें ये देखना है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस, एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू प्रोवाइड विद द जर्नल एंट्री. सो सी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:5:2, whereas the new PSR is 1:1:1. तो जैसे कि मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताया था. सो भरत गेन, लेट्स सी, 1/3 माइनस भरत का ओल्ड PSR कितना है? 6, 11 एंड 13, 2/13. So Bharat's gain is 7/39, whereas sacrifice by Ram is 6/13 minus 1/3. LCM लिया, 13 and 3 का LCM 39, 18 minus 13, so 5/39. अब देखो, अगर भरत 7/39 गेन कर रहा है और राम जो है वो 5/39 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमें आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है ना. शाम अपने आप ही 2/39 सैक्रिफाइस करेगा बराबर करने के लिए. सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन राम एंड श्याम इज व्हाट? 5:2. ठीक है, तो अभी इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भरत हैज टू कंट्रीब्यूट टू राम एंड श्याम. सो देखो, द टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 78,000. तो गुडविल इक्वल टू भरत गेन. भरत कितनी होगी? 14,000. सैक्रिफाइस बाय राम 5/7 इंटू 14,000 इज 10 एंड 4,000. तो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी हमारी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. सो इट वुड बी भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट. bear with my handwriting please. To Ram to Sham. सी, सो यहां पर आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 14,000 रुपीज. यहां पर आपका 10 एंड यहाँ 4. ठीक है, सो एक कंसेप्ट आपको याद रखना है. यहां पर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वुड बी डेबिटेड बिकॉज उसने गेन किया है, सो ही मस्ट कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर देयर लॉसेस टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सी, अब इस क्वेश्चन को सब सॉल्व करेंगे साथ में. द सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी की केस स्टडी में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, उधर से ही मैंने इस क्वेश्चन को निकाला है. सो ABC were partners sharing profits and losses in this ratio. It was decided that with effect the PSR would be this: goodwill is valued at
2 years of purchase of average profit of 3 years. तो सब मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे. सो अगर हमें गुडविल निकालना है तो फर्स्ट लेट्स चेक द एवरेज प्रॉफिट्स. तो एवरेज प्रॉफिट्स आपके कितने आ गए? 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000. 3 साल का है, डिवाइडेड बाय 3. तो 48 प्लस 42 इज 80, 90, 1,50,000. 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 इज 50,000. तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी? 2 इयर्स ऑफ परचेज के बेसिस पे हमें चेक करनी है. तो गुडविल जो हो जाएगी वो हमारी 50,000 इंटू 2, क्योंकि 2 इयर्स ऑफ परचेज है ना. तो गुडविल जो आ गई वो हमारी 1,00,000 रुपीज आ गई. अब हमें देखना है पास नेसेसरी. तो हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेन कितना है पार्टनर्स का. तो एक हम चेक करते हैं. ओल्ड पीएसआर कितनी है? 5, 9, 10. 5/10 माइनस 9, 6, 15, 9/20. ठीक है. तो ए का सैक्रिफाइस कितना हो गया? एलसीएम लिया 20 आ गया. 10 माइनस 9/20 इज इक्वल्स टू 1/20. सो ए का सैक्रिफाइस आ गया 1/20. नाउ लेट्स चेक विद बी. बी का 4/10 माइनस 6/20. सो 8. सो इसका कितना आ गया? सेकेंड. 8, 2/20. सो 2/20 सैक्रिफाइस बाय बी. तो अब सी का निकालने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ए भी 1/20 सैक्रिफाइस कर रहा है और बी बाई 2/20 सैक्रिफाइस कर रहा है. तो ऑटोमेटिकली सी का क्या आ जाएगा? 3/20 गेन. तो अब अगर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है तो हम किसके हिसाब से करेंगे? 1,00,000 गुडविल अमाउंट है. तो यहाँ पर अगर हमारा देखते हैं 1,00,000 इंटू 1/20, तो ए का सैक्रिफाइस कितना हुआ? 5,000 रुपए. सैक्रिफाइस बाय ए इज इक्वल्स टू 5,000. सैक्रिफाइस बाय बी कितना हुआ? 2/20, 1/10, 10,000 रुपीज. तो और सी का गेन 15,000. सो अब सी मस्ट कंपनसेट ए एंड बी ना. तो सब अपने आप जर्नल एंट्री लिखो. जर्नल एंट्री वुड बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट 5,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली. अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इरेजर आ जाओ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. PQR are partner sharing profit and losses equally. They decide that in future R will get 1/5 share in the profits. Okay. On the day of change, firm's goodwill is valued at 3 lakh rupees. Journal entry, make necessary journal entry. तो सब अपने आप सॉल्व करेंगे इसे. उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट्स सी. हो गया सबसे? चलो अब हम करते हैं. ओल्ड PSR ऑफ PQR इज व्हाट? ओल्ड PSR of P comma Q and R is equals to 1:1:1. And they decided that R will get 1/5 share in the profits. तो मतलब वो तो इक्वली शेयर कर रहे हैं ना, मतलब वो तो 2/5 और 2/5 ले रहे हैं और R 1/5 ले रहा है. सो न्यू PSR कितना हो गया? 2:2:1. तो अब देखते हैं. अब गेन सैक्रिफाइस देख लेते हैं. P का देखा हमने 1/3 माइनस 2, 4, 5, 2/5 है ना. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एलसीएम कितना आ गया? 15. 5 माइनस 6/15. सो इसका माइनस में मैंने आपको क्या बताया था? अगर माइनस में आएगा तो क्या माना जाएगा? गेन. 1/15 गेन. ठीक है. नेक्स्ट क्यू का देखते हैं अब हम. क्यू का भी हमारा 1/3 माइनस 2/5. दोबारा करने की जरूरत नहीं है. सेम 1/15 गेन. अब दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हुआ? आर हुआ ना. तो आर का कितना सैक्रिफाइस? 2/15 सैक्रिफाइस. सो अब हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर.
सो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1/15 ऑफ 3 lakhs कितना हुआ 20,000. क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 40,000. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. ठीक है, so at the time of change in PSR, there are certain reserves and accumulated profits which have come into existence through the hard work of the employees in the past. तो किस रेशियो में शेयर होने चाहिए? ओल्ड PSR में शेयर होने चाहिए. So we have to distribute all these reserves and accumulated profits in the old PSR only. So इसके अंदर हम जर्नल एंट्री देखते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, वर्क्समैन कंपनसेशन जो भी है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होना चाहिए. और यहीं पर ही अगर लॉसेज होते तो उनका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होना चाहिए इन देयर ओल्ड PSR ओनली. सो जैसे नेक्स्ट एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब आपको लगेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर भी है और नीचे भी है. सो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो वो लॉस है. अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो वो एक प्रॉफिट है. सो अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस लिखा होता है, डेबिट बैलेंस लिखा होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर. सो इफ देयर इज रिटन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, सो एक चीज मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कंसेप्चुअली, सो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, तो आपको देखना है क्रेडिट में दे रखा है तो डेबिट कर देंगे तो अमाउंट बराबर, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिमिलरली वाइस वर्सा. ठीक है, सो सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. Ravindra and Sudhinder are partners in an enterprise sharing profits in the ratio of 4:1. On 15th April, they admitted someone as a new partner. On this date, there was a balance of 20,000 in general reserve and debit balance of 10,000 in the profit and loss account. अब देखो यहाँ पर डेबिट बैलेंस दे रखा है ना? तो अब देखो, सो दिस जनरल रिजर्व हैज टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन रविंदर एंड सुधिंदर, क्योंकि नया पार्टनर का तो कोई काम ही नहीं है ना, नया पार्टनर थोड़ी लेगा इसके अंदर, नहीं ना. So this general reserve is transferred between Ravindra and Sudhinder in their old PSR, which is 4:1. So अब इसकी कैलकुलेशन देख लो, बहुत इजी कैलकुलेशन है. सी 20,000 रुपीज है. सो रविंदर का शेयर कितना है 4/5, ये कैंसल आउट हुआ, ये 4,000, तो ये रविंदर का आ गया 16,000. सिमिलरली रिमेनिंग 4,000 सुधिंदर में चले गए कैपिटल अकाउंट में. नेक्स्ट थिंग इज देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 10,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब मैंने बताया था डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉस. सो देयर इज अ लॉस ऑफ 10,000. अगर हम फिर से कैलकुलेशन करते हैं, 10,000 इंटू 4/5 शेयर 2,000, सो ये आगे 8,000 रुपीज कौन शेयर करेगा, रविंदर, और बाकी का 2,000 सुधिंदर. सो रविंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, सुधिंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट बैलेंस क्या हो गया, नील, क्योंकि जितना डेबिट किया था उतना क्रेडिट कर दिया.